The new episode of Rendezvous with English is here. Welcome, everyone. Hope you are enjoying, hope you are studying properly. The vacations are soon going to end for the learners. For some places, the vacations would have definitely ended, isn't it? Am I right? We were dealing with the topic transformation. So let's continue with the topic transformation. Let's, because a lot of things are left and many topics have to be covered, and so let's continue with the topic. And hope you all are doing fine. The Ashes series is going on. The World Cup qualifiers have also started at the same time, so the sports are going in tandem. In tandem means they are going side by side. Tandem means side by side. So we last episode we studied about changing from assertive to interrogative, as well as we also saw how to change the sentences from exclamatory to assertive. Now today we will be seeing changing the sentences from assertive to exclamatory, that is vice versa. I am always using this phrase vice versa. Vice versa means opposite. Okay, किसी भी चीज का opposite होता है vice versa. Okay, so instead of saying the opposite every time, you can use this word phrase vice versa. Right? Let's begin. The assertive to exclamatory. I hope you are enjoying the vacations. The mango season is there, so eat juicy ripe mangoes, the luscious ones, and very beautiful English word for those who are lovers of any particular thing. So the mangoes are luscious. Luscious means they are juicy. Okay, there is another word, another synonym for it is scrumptious. Scrumptious means इसका मतलब होता है something which is delightful to eat, enjoy. Okay, something which gives lots of pleasure. So that is scrumptious. Okay, so the mango season is there. Those who are mango lovers enjoy eating mangoes. मैंने बताया भी था what kind of mangoes I love. Let's see in this episode today, changing from assertive to exclamatory. Okay. It is very sunny today. ठीक, it is very sunny today. So इसके लिए क्या यूज करेंगे, क्योंकि वेरी यूज हुआ है, तो जब भी कभी कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, व्हाट सरप्राइज है तो व्हाट यूज कर सकते हैं, हाउ यूज कर सकते हैं. सो सिंस इट्स एन एट्रीब्यूट बीइंग टॉक्ड अबाउट अ क्वालिटी, सो वी कैन यूज हाउ. और किस चीज की बात कर रहे हैं, सनी होने की. सो हाउ सनी टुडे इट इज. गया. तो जो भी सब्जेक्ट जिसके भी बारे में बात कर रहे थे, सनी की बात कर रहे हैं, हाउ सनी, और टाइम लिख लीजिए और सब्जेक्ट और वर्ब को घर में लिखना है. उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होती है, क्योंकि जिस चीज की हम बात कर रहे थे वो था सनी. इट इज रिलेटेड, इट इज एक्टिंग लाइक ए ऑब्जेक्ट हियर, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हाउ सनी टुडे इट इज. अब अगर सेकंड सेंटेंस हो, जैसे इट इज वेरी सैड दैट माई डॉग हैज डाइड. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इट इज वेरी सैड. अब ये पार्ट जो है इसका, इस सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब में एक तरीके से है, ये पार्ट क्या बता रहा है, इट इज टेलिंग अबाउट द एक्सक्लेमेशन, और फिर ये पार्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पार्ट ऑफ एक्शन, एंड दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन एक्सक्लेमेशन. सो जब हमने एक सेंटेंस किया था, याद है, जहां पर हम इंटरजेक्शन का यूज करते थे, तो इट इज वेरी सैड के लिए इंटरजेक्शन क्या यूज कर सकते हैं, अलास. एंड अलास क्या लिख देंगे, माय
डॉग हैज डाइड। तो उस सेंटेंस को जिस भी टेंस में है उसको एज इट इज लिखते हैं। अलास माय डॉग हैज डाइड। विल बी रीराइटिंग द सेंटेंस इन द सेम टेंस एज इट इज। जो एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है यहाँ पर इस पार्ट में, ठीक है, मेन क्लॉज में, उसको वैसे ही उसको चेंज करके इंटरजेक्शन के फॉर्म में, इंटरजेक्शन में चेंज करके लिखना है और बाकी सेंटेंस को वैसे ही लिख देना है, ठीक है। जो भी टेंस है जहां से कंजंक्शन शुरू हुई उसके बाद जो भी सेंटेंस दिया हुआ है, whichever sentence is given here, we'll be writing the sentence exactly in the same manner. Whereas here in the case, whatever attribute was being discussed in the sentence, we are using how, a question word like how or what has to be used. फिर उस एट्रीब्यूट को लिखते हैं या सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर बाकी सेंटेंस को वर्ब सबसे लास्ट में लिखी जाती है। वर्ब पहले कभी भी मत लिखिएगा when you are writing an exclamatory sentence, a full exclamatory sentence as it was written here, ठीक है। समझ में आया? तो alas my dog has died, ठीक। अब एक नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं। I hope you are understanding. I wish that I were a king. मैं विश करता हूँ, याद है? Remember? I wish that I were a king. तो यहाँ पर डैश लग सकता है, कॉमा भी लग सकता है। I wish that I were a king. So ये इस तरीके का सेंटेंस है, assertive सेंटेंस है। अब इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने में क्या करना था? हम if का भी यूज कर सकते हैं और o का भी यूज कर सकते हैं। o यूज कर सकते हैं, o I were a king। एक फॉर्म ये हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क क्लास में लगेगा, या if I were a king। In any of these ways we can make the sentence। इनमें से किसी एक तरीके से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। You can, but exclamatory mark has to be used at the last। और ये I were a king will remain as it is, ठीक है। wish की जगह पर इन दोनों में से एक कोई वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। Any one of these words will be used, o or if। So जहां पर wish वाला सेंटेंस आता है here in the main clause, वहां पर हम क्या लिखते हैं? वहां पर उसकी जगह पर o या if का यूज करते हैं। और अभी पिछला सेंटेंस भी बताया था जहां पर इंटरजेक्शन का यूज किया था, where we have used interjection alas। So there also I told you that the remaining sentence after the conjunction will be rewritten as it is। उसको वैसे ही लिखना है जैसा कि वो सेंटेंस दिया हुआ है। So o I were a king और if I were a king will be written as it is। I hope it is clear now, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखिए, ये असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर रहे हैं तो एग्जैक्टली सेम तरीका है जिस तरीके से एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज करते थे कि सब्जेक्ट को पहले लिखते थे फिर वर्ब आती थी। यहाँ पर वर्ब हमेशा बाद में जाएगी। अगर सेंटेंस पूरा असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है along with the exclamation given in the sentence, तो हम उसको इस तरीके से चेंज करके लिखेंगे या इंटरजेक्शन के सहारे लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। समझ में आया? तो इजी है सेंटेंसेस, isn't it? Assertive to exclamatory। So exclamatory क्या है? Something which expresses surprise, right? तो actually students or those who do different kinds of things face lots of problems, है ना? और प्रॉब्लम्स हर फील्ड में होती हैं, isn't it? ऐसी कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? We have to be patient, we have to be calm। The other day I told you that we should keep our anger in control। हमको अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम गुस्से पे काबू नहीं रखेंगे then it will be really very very tough for us to manage things। So उसी से एक पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट है, एक निगेटिव एट्रीब्यूट आता है कि जब लोग आजकल स्पेशली इन टुडे सिनेरियो व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू गेट सक्सेस, व्हेन पीपल आर डू नॉट गेट वेरी गुड मार्क्स
when people are disappointed with someone in the family or with any relative or with any person in friendship or all, तो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, and this overthinking leads to depression. जैसे मान लो suddenly someone dies in the family, as my mother died last year, so for some days I was not able to cope up with that situation. बहुत दुख हुआ मुझे, मैं दिन भर रोता था, रात भर रोता रहता था, याद करता था चीज़ें माँ की, कि किस तरीके से माँ मेरे से प्यार से बिहेव करती थी, उनके पास जाता था, उनको हग कर लेता था, किस कर लेता था, and she used to just give a beautiful smile. She never ever got angry with me. मुझे याद नहीं है, शायद एक दो बार छोटे पर वो गुस्साती हूँ, वो भी तब जब मैं धूप में खेलने चला जाता था, अदरवाइज नहीं गुस्साती थी. तो इस तरीके की जब कोई इंसिडेंसेस हो जाते हैं हमारी फैमिली में, या हम किसी एग्जामिनेशन को लगातार दे रहे हैं, वी आर टेकिंग द एग्जाम, होप यू रिमेम्बर, नॉट गिविंग द एग्जाम, बताया था ना मैंने, एग्जामिनेशन इज नॉट गिवन, इट इज टेकन. तो जब हम कुछ नेगेटिव फील कर रहे हैं या कोई सिचुएशन आ गई है, ये बहुत ज़्यादा मनी लॉस हो गया है, किसी चीज़ में हमने इन्वेस्ट किया था, बिजनेस किया था, उसमें बहुत ज़्यादा मनी लॉस हो गया, तो पर्सन व्हेन स्टार्ट्स थिंकिंग ऑल द टाइम अबाउट द सेम एटीट्यूड, या हम बीमार हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम है, बीमारी छोटी सी है, बुखार आ रहा है, या माई स्टमक इज नॉट वेल और आई मेट एन एक्सीडेंट, लेकिन हम उसकी ओवर थिंकिंग इतना ज्यादा कर रहे हैं, थिंकिंग सो मच अबाउट इट एवरी नाउ एंड देन दैट आई स्टार्ट गोइंग इनटू ए डिप्रेसिंग स्टेट. डिप्रेसिंग स्टेट वो होती है जब हम अपने चारों तरफ निगेटिविटी को डेवलप करने लगते हैं और हमको हर चीज में, हर पर्सन में, हर सिचुएशन, माँ नहीं रही है तो क्या दुनिया नहीं खत्म हो गई. I went to my college right after 2 days because there was a big program at the annual function of the school was there, and I went and performed that program for my college. So although I was not in a sound mind, because we have to move on. If we do not move on from this situation, है ना, अगर हम अपने आप को समझाएंगे नहीं, और दूसरे तो हमको कहते ही है ना, हमेशा सपोर्ट करते हैं फैमिली में कि अरे होगा, शांत हो जाओ, रो नहीं, बी काम, लोग आकर सपोर्ट करते हैं जो हमारे क्लोज वंस होते हैं किसी भी तरीके की सिचुएशन में. तो अगर हम इस, जैसे मैंने पापा से पूछा, I asked my father about it, whether I should go to the college. He said, yes, of course you should go. Although he was also in a very, very troubled state. After all, my mother was her life partner for more than 45-50 years. They were together. I was thinking of organizing a platinum jubilee ceremony for them, and unfortunately this happened. So my father only gave confidence to me. उन्होंने ही मुझको confidence दिया कि नहीं बेटा जाओ, ये life है, and this is a part and parcel of life. This will continue. ये तो life में हमेशा होता ही रहेगा, और इसलिए हमको इससे रुकना नहीं है. We have to keep moving on. We don't have to get bogged down. तो हम, ऐसा नहीं था कि हम कॉलेज चले गए तो बिल्कुल सब कुछ सही हो गया. No, still in the college also many times I felt about my mother. I became emotional. घर फिर आया, घर तो फिर वही सब याद आने लगा, बाकी चीजें याद आने लगी. तो मेरा पॉइंट कहने का ये है कि अगर हम ऐसी कोई सिचुएशन फेस करते हैं लाइफ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा हम किसी को खो देते हैं, तो हमको अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए निकलना चाहिए. ये जो हमारे यहाँ रिचुअल्स बनाए गए थे अलग अलग रिलीजन में, रिस्ट्रिक्टिंग पीपल टू फॉर 12 days, 13 days, 10 days इन द हाउसेज, वो क्यों बनाए गए थे? वो इसलिए बनाए गए थे बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ ए रिलीजियस एस्पेक्ट, बट बिकॉज पीपल डू नॉट हैव साउंड माइंड. उनका दिमाग स्टेबल नहीं होता है, उनका दिमाग उस आदमी की डेथ में होता है जिससे वो अटैच था, और या कोई लॉ, स्पेशली डेथ की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, आदमी निकलने में किसी से बात करने का मन नहीं करता है. तो ऐसी सिचुएशन के लिए बनाए गए थे. बट व्हेन वी हैव अ डिफरेंट सिनेरियो, वी हैव लॉस्ट
समथिंग मॉनेटरी, ओके, किसी तरीके का लॉस हो गया, कोई चीज डैमेज हो गई, दुकान जल गई, हाउस वाज ऑन फायर, सो हाउस वाज ऑन फायर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑन फायर यूज करते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशंस पे आएंगे, प्रीपोजिशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन राइटिंग द सेंटेंसेस प्रॉपर्ली। ना अर्थ का अनर्थ हो जाता है, पता नहीं क्या क्या लिख देते, मैं तुम आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। The child was on fire तो बच्चा आग पर बैठा हुआ था, इस तरीके से। तो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे डिप्रेशन, सो अगर हम अपने आप को थोड़ा सा समझाएं और इस स्टेट से निकलने के लिए लोगों से बात करें, लोगों की सुने, सिर्फ अपनी नहीं। जो वो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग स्टेट में चले जाते हैं जो बिल्कुल सुनते नहीं है किसी की। अगर हमको निगेटिविटी हो रही है, घर में बैठे बैठे बहुत ज्यादा निगेटिव मिल रहा है, उलझन सी हो रही है एकदम, हम बाहर निकलना चाहिए, घर से बाहर निकलिए, छत पर जाइए, टहलिए, वॉक करिए, किसी से बात करिए, समवन whom you are comfortable in talking to, whom you love talking to, whom you love spending time with, जिसके साथ आपको समय बिताना पसंद है, आप उससे बात करिए, then you will definitely be enjoying your time। तब आप अपना समय enjoy करेंगे, अपना टाइम enjoy करेंगे and you would definitely feel worthy। ठीक है, समझ में आई बात? तो अपने आप को engage करिए, that was the tip। When you are in a negative state, do not be alone, do not be alone, I repeat, mix up with people so that you are able to cope up with the situation and you are able to come out of that depressing state easily। ठीक, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या करना है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, है ना ऐसे ही कहा जल्दी जल्दी हमने। तो हम क्या करेंगे, अब वर्ब्स को जितनी भी हैं उनको कैसे में नाउन में चेंज करना। इसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू नो इज, ठीक है, वर्ब इनटू नाउन। जो सबसे पहली चीज है वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए, क्योंकि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आती हैं then this will be a Herculean task for you to change, because the meaning of the sentence don't have to change and every sentence has a different way of changing, right? समझ में आई बात? तो verb को noun में कैसे चेंज किया जाएगा, पहला सेंटेंस, The doctor advised him to take rest। ठीक है, अब इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, मेन वर्ब ये है, ये तो इंफिनिटिव है, टू टेक रेस्ट, है ना। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट। अब एडवाइस का नाउन फॉर्म क्या है, एडवाइज्ड, सलाह दी, तो एडवाइस का नाउन फॉर्म क्या है, एडवाइस। ठीक, एडवाइस ये नाउन है और ऐसी वर्ब होती है। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे, डॉक्टर एडवाइज हिम। तो जब हम नाउन यूज करते हैं ना, नाउन हमेशा एक वर्ब के बाद यूज करते हैं, है ना, एज एन, क्योंकि नाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, याद है एक्टिव पैसिव में, ही गेव मी मनी, ओके, ही हेल्प मी मॉनेटरीली। तो हम क्या करेंगे, मनी जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही यहाँ पर अब एडवाइस की जगह पर उसने क्या दिया, एडवाइस दिया, तो देने की इंग्लिश क्या हुई, गिव। तो अब हम पहले एक वर्ब लाएंगे यहाँ पर, वी विल बी यूजिंग अ वर्ब। तो डॉक्टर गिव, क्या किसको दिया, हिम, क्या दी, एडवाइस, काहे की, टू टेक रेस्ट। तो कैसे चेंज किया हमने, जो भी वर्ब हैं उनका नाउन फॉर्म में पहले हमको वर्ब आना चाहिए, नाउन फॉर्म में सॉरी वो आना चाहिए हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हेन वी गेट द नाउन फॉर्म, तो नाउन हमेशा वर्ब के बाद यूज होती हैं किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि ये तो नाउन ऑलरेडी है ही,
और जब हम उसको फिर से यूज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हो रही है सेंटेंस में, एंड सिंस इट इज बीइंग यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट सो वी नीड अ वर्ब। तो इस सेंटेंस में जो भी वर्ब निकल रही है, डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने उसको सलाह दी, तो दी की इंग्लिश गेव, क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में था तो इस वर्ब को यूज किया, किसको दी, उसको क्या दिया, एडवाइस, और फिर बाकी सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट को वैसे ही लिख देंगे। आई होप समझ में आया होगा, इजी है। बस आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार करनी पड़ेंगी, नहीं तो कोई ग्रामर की अच्छी सी बुक ले लीजिए, न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश ले लीजिए, एक्सीलेंट की बुक्स आती हैं, केपी ठाकुर की बुक आती है, केपी ठाकुर इनमें सबसे अच्छी है, तो इन बुक्स को ले लीजिए एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू you will have to learn the different parts of speeches। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस, I did not invite him, तो अब इसमें वर्ब क्या है, इनवाइट, इनवाइट है ना, मैंने उसको न्योता नहीं दिया, I did not invite him, मैंने उसको न्योता नहीं दिया। ठीक, तो इनवाइट का नाउन फॉर्म इनविटेशन, और भी हमने क्या कहा, सेंटेंस का हिंदी क्या था, मैंने उसको क्या नहीं दिया, न्योता, न्योता इज इनविटेशन, सो वी नीड अ वर्ब, सो आई डिड नॉट, क्या वर्ब, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट गिव हिम, क्या नहीं दिया, इनविटेशन। देखिए कितनी आसानी से बन गया, हाउ इजीली यू हैव चेंज्ड। मैंने भी क्या बताया, एज एन ऑब्जेक्ट नाउन यूज होगा, तो मैंने आई डिड नॉट क्या नहीं दिया उसको, इनविटेशन नहीं दिया, चेंज हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए, लेट्स सी वन मोर सेंटेंस। तो ठीक है, समझ में आया, जो नाउन जो है किसी भी सेंटेंस में वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा, क्योंकि एक नाउन ऑलरेडी यूज हो रही है, इसलिए। जैसे थर्ड सेंटेंस है, ध्यान दे रहे हैं ना, He received me warmly, warmly नहीं, warmly, warmly, ठीक है, warmly नहीं होता, warmly नहीं, warmly, warm, warm, आर नहीं, आर बहुत हल्के से प्रोनाउंस हो रहा है, it is warmly, warmly, आर नहीं आ रहा है, warmly। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, received me warmly, received क्या है, उसने मुझे गर्म जोशी के साथ रिसीव किया, मुझे वेलकम किया, ठीक है, स्वागत किया। ठीक, तो ही रिसीव, रिसीव का वो क्या होगा, रिसेप्शन नाउन। तो अब ऑब्जेक्ट होना है, तो क्या करेंगे, उसने क्या दिया मुझे, गर्म जोशी के साथ न्योता दिया, रिसीव किया, तो ही गेव किसको, मी, कैसे, वार्म क्या, रिसेप्शन। उसने मुझे गर्म जोशी के साथ न्योता दिया या रिसीव किया। ठीक है, he gave me warm reception। देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब वर्ब से नाउन फॉर्म में चेंज करेंगे so it will be changed into an object form, and so you have to add a verb, extra verb here in order to change। जब आप verb ऐड करेंगे तो उसको इजीली चेंज कर पाएंगे। ठीक है, देखिए तरीका भी बता दिया आपको कैसे करना है। And one last sentence, एक सेंटेंस और देख लें क्या, समझ में आ रहा है। देखिए प्रैक्टिस के बिना कुछ होने वाला नहीं है, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगी। You will succeed, क्योंकि practice makes a man perfect। I am again and again telling you, a topper told me that I tried and I, in the 5th attempt I was able to qualify the UPSC। My college students, those who are watchers would definitely be aware of this fact। आपने सुना था उनका इंटरव्यू हमारे साथ कि कैसे वो लगे रहे। So practice, keep practicing, so you will succeed। तो इसमें वर्ब है succeed, succeed का नाउन फॉर्म I will get success, तो you will succeed in your plan, तो क्या हो जाएगा, you will, हमने वर्ब बोली थी, get सक्सेस, क्या मिलेगी, सक्सेस इन योर प्लान। सिंपल, बन गया। देखिए तुमको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, सक्सेस नाउन है, तो एक वर्ब एक्स्ट्रा ऐड करनी है जो कि उसी सेंटेंस में दी हुई है, उसको
वहां पर वो जो नाउन है वो वर्ब फॉर्म में है, उसकी जगह पर जो मीनिंग निकल रही है उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू यूज अ वर्ब एंड यूज दिस नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो होप यू हैव अंडरस्टूड। तो आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब इनटू नाउन अभी बहुत सारी बाकी है चेंज करना, वर्ब्स नाउन से वर्ब, एडजेक्टिव एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो विल बी डूइंग दोस इन द सब्सिक्वेंट एपिसोड्स। ये ध्यान रखिए, एक वर्ड आपके लिए लाया हूं, लोगोफाइल। लोगोफाइल मींस लवर ऑफ वर्ड्स। ओके, जो शब्दों को प्यार करता है, शब्द सीखता है। जैसे मैं, आई एम अ लोगोफाइल, आई लव द वर्ड्स ऑलवेज, आई कीप एंजॉयिंग देम, आई कीप रीडिंग देम, तो दैट पर्सन इज लोगोफाइल। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज बताई कि आप लोग डिप्रेशन, निगेटिविटी डेवलप होने पर किसी से बात करिए, मम्मी पापा, बहन भाई, दोस्त, टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप टीचर से अटैच्ड हैं, टीचर से अपनी एक एसोसिएशन बनाइए, टीचर पर भरोसा दिखाइए। अगर आपके अराउंड कोई अच्छे टीचर हैं जो सही मायने में अच्छे हैं, वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं आपको लाइफ की भी अच्छी बातें बताते हैं, आपको प्यार करते हैं, ही नर्चर्स यू नाइसली, देन यू कैन ऑल्सो टेक हिज हेल्प। तो उनसे हेल्प लीजिए, rather than being alone, rather than thinking negative all the time। हर कोई इंजीनियर या हर कोई डॉक्टर या हर कोई पायलट नहीं बन सकता है। सब लोगों के अंदर डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि कोई कुछ भी नहीं बन सकता। सब कुछ ना कुछ कर सकता है हर कोई। एवरीबॉडी कैन बी सक्सेसफुल, कैन बी गुड इन लाइफ, प्रोवाइडेड यू आइडेंटिफाई योर talent and work according to that, and don't get depressed. If you fall into any kind of depression, do consult someone, do talk to someone whom you love, whom you confide. Okay, that's all for today's episode. Hope you enjoyed this episode, hope you enjoyed learning. Do like, subscribe and share if you think my episodes are worthy enough. That's all, bye bye.